Assalamu alaikum. This is 20th lecture of Managerial Economics. We are discussing these days cost analysis and estimation. We'll be discussing today two important concepts, and those are cost volume profit analysis, which is also called break-even analysis. And then after this, we will consider the learning curve concept, which is also called learning curve or experience curve. First, we will discuss cost volume profit analysis. Cost volume profit analysis, as I said earlier, is also called break-even analysis or break-even model. This is an important technique which is used to study the relations among cost, revenues, and profits. As I said, that there are two names, that is cost volume profit analysis and this is also called break-even analysis. Now, there's a slight difference between these two, and this can be explained. As you can see on your screen, that cost volume profit analysis shows effects of varying scales, while break-even analysis shows zero profit points of cost coverage. In order to explain this model, that is the break-even model or the cost volume profit analysis, we use both the algebraic method and the geometric method. First, we will consider the graphic method. In this figure, you can see that on horizontal axis, we have plotted output, and on vertical axis we have plotted revenues and costs. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि fixed cost जो है, that is a horizontal straight line which is showing the fixed cost because they are fixed cost. It remains constant regardless of the volume of the output. Then we have here plotted the total revenue curve and the total cost curve, which are again linear curves. And this curve is called, that is this entire diagram is called cost volume profit chart. As I said, the fixed cost is shown and the variable costs are the difference between the total cost and the fixed cost. Total cost and total revenue both are linear equations. In this diagram, they intersect at the when Q is equal to 50, and the corresponding level of revenue and cost at that point is $150. So this means that the two curves intersect at this point. This is the point where the firm breaks even. That is, its total revenue is exactly equal to total cost. And the level of output here, as far as this example is concerned, it is 50 units. So 50 units पे sale पे या production जो है, उस पर total revenue और total cost जो है, वो एक दूसरे के equal हैं. और इस example में हम देख सकते हैं that this is the at this point or at this level of output, revenue and cost are equal to $150. Here you can see on screen that the difference between the revenue curve and the cost curve is showing losses and profits. जैसे कि आप जानते हैं, profit is simply revenue minus cost. तो total revenue curve हमारे पास जो है, that is showing, that is reflecting the price demand relation of the firm's product, and cost side जो है, वहाँ पे आप total cost में देख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा अभी कि profit जो है, that is equal to revenue minus cost. तो जो lower levels of output हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं cost curve is lying above the revenue curve. Therefore, the firm incurs losses at lower levels of output. Then the point of intersection of these two curves, and that is the point which is called break-even point. That is the point where the firm breaks even. And beyond that point, revenue curve lies above the cost curve. तो इसमें आप देख सकते हैं कि higher levels of output पे firm is earning profits. So this is how we explain the graphic side of the explanation of this model. Now we are going to consider the algebraic solution or the algebraic method to explain this model. Cost volume profit analysis में हमने कहा है कि जो हम इसमें basic जो firm का इसमें मकसद है, वो हम देख सकते हैं कि फर्म को ये देखना है कि किस लेवल ऑफ आउटपुट पर कॉस्ट और जो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द मैनेजरियल point of view, that is the managers or the business executive, they want to see the level of sales
that is required for the firm where the firm breaks even. That is, the firm's total cost is exactly equal to total revenue. For the algebraic solution, we equate total cost to total revenue. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, total revenue is equal to price multiplied by quantity. Total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost. Now total variable cost जो है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं average variable cost multiplied by Q. How do we derive it? We know that average variable cost is equal to total variable cost divided by Q. Now multiplying both sides by Q, we get what? We get total variable cost equal to average variable cost multiplied by Q. This means that instead of total variable cost, that is TVC, we can write ABC multiplied by Q. So you can see that the total cost curve here is written as total fixed cost plus total variable cost, जो कि total variable cost जो है, since we have seen that it is equal to average variable cost multiplied by Q. So we can write here the total cost function as TC equal to TFC plus ABC times Q. अब ब्रेक इवन वॉल्यूम जो है वो हमने बताया है आपको दैट द ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज वेयर द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू. So equating these two curves and substituting their values, we get here total revenue. Since total revenue is equal to P times Q, P times Q is equal to total cost, and total cost we have just now obtained equal to total fixed cost plus average variable cost multiplied by Q. Now collecting the like terms, that is the terms involving Q, we bring them to the left of the equal sign so that we get here PQ minus ABC multiplied by Q. अब Q को हम factor out कर लेते हैं, that is we factor out Q, and we have on the left hand side Q times P minus ABC is equal to TFC on the right hand side. TFC is the total fixed cost. और अब हम now we can easily solve for Q, that is we can multiply both sides by 1 over P minus ABC, or simply we divide both sides by P minus ABC, and we get the break even output level, which is equal to total fixed cost divided by P times A minus BC. We get the break even output level QBE, where the subscript BE indicates break even level of output. So QBE is equal to TFC divided by P minus ABC, where P is the price and ABC is the average variable cost, TFC is the total fixed cost, and QBE is the level of output which breaks even the firm. That is, this is the point where the firm's total cost is equal to total revenue. In this slide, we have taken an example of another firm, and you can see that for this firm, the total fixed cost is $200, which is shown by the dotted line. और इसमें total revenue और total cost curves जो हैं वो आप देख सकते हैं. The point where the total revenue is exactly equal to total cost, that is the break-even point, is the point where Q is equal to 40. And Q is equal to 40, and at this level of output, total revenue and total cost both are equal to $400. Above $400, that is the level of output beyond Q equal to 40, we can see the firm is earning profits, क्योंकि वहाँ पे जो revenue curve है वो cost curve से above है. और इससे जो नीचे आउटपुट लेवल्स हैं, दैट इज़ Q इज इक्वल टू 40 से जो निचले लेवल पे आउटपुट लेवल्स हैं वहाँ पे फर्म जो है वो लॉसेस इनकर कर रही है, बिकॉज फॉर दोज लेवल्स ऑफ इन आउटपुट वी कैन सी दैट द कॉस्ट कर्व इज लाइंग अबव द रेवेन्यू कर्व, सो दैट द फर्म इनकर्स लॉसेस against these levels of outputs. Here, as we have seen that the fixed cost is equal to $200, और यहाँ पे जो total revenue है उसकी slope जो है वो क्या जाहिर करती है, that indicates the price which is fixed. We have assumed that the prices are fixed here, and we have also assumed that prices of inputs are fixed. तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो कॉस्ट वॉल्यूम रेवेन्यू, ये जो कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ये हमारे पास लीनियर है, लीनियर मॉडल है, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग दैट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड द प्राइसेस आर फिक्स्ड.
अगर हमारा ये जो असम्पशन है ये इसमें कोई चेंज आ जाता है, दैट इज़ द प्राइसेस एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट फिक्स्ड, दैट इज़ देयर इज़ अ चेंज इन आइदर इन प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दैट केस वी विल नॉट बी एबल टू अप्लाई दिस लीनियर मॉडल. उस केस में हमें वी हैव टू draw non-linear total revenue and total cost curve. Okay, here we have linear model, and here we can see that the slope of the total revenue curve is the price, which is $10 here. So the slope of the total revenue curve is 10. The slope of the total cost curve is showing what it is showing, the average variable cost, and in this case the slope of the total cost is 5, which indicates that per unit cost of here is $5. That is, the average variable cost is equal to $5. अब ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास है, और अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्राफिकली वी कैन सी द सोल्यूशन, दैट इज़ फॉर दिस फर्म given these total revenue and total cost functions, we can see that the firm breaks even at Q equal to 40, and against this the total revenue and total costs are equal to $400. So अब इसको हम algebraically जो है इस information को लेकर उस formula में substitute करते हैं और इसको जो result है वो इसको देखते हैं. Now, given all this information that P is equal to 10, TFC is equal to 200, ABC is equal to 5, and QB, that is the break-even output level, is equal to 40, we use our formula, and we'll substitute these values into our formula, और उसके बाद हम इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या result जो है वो आता है. Here we are given this information, and we can see that since the formula is QB is equal to total fixed cost divided by P times divided by P minus ABC. So total fixed cost हमारे पास है 200, P is 10, and ABC is equal to 5. Substituting the values, we get here, you can see on screen that break even point will be 200 divided by 10 minus 5, which is equal to 40. और ये हम ग्राफिकली पहले ही देख चुके हैं. अभी हमने आपको बताया कि द पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, दैट इज़ द पॉइंट वेयर आउटपुट इज़ इक्वल टू 40 यूनिट्स, और इसी को हमने अलजेब्रिकली जो है वो आपको सॉल्व करके बताया है. अब आप देखें कि जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है दैट इज़ Q इक्वल टू, दैट इज़ द ब्रेक इवन level of output is equal to total fixed cost divided by P minus ABC. The denominator here is called contribution margin or profit contribution, which is denoted by pi c. तो ये जो है आप देख सकते हैं कि denominator show कर रहा है price minus the average variable cost, so it is giving the profit contribution. और यहाँ पे अभी मैंने आपसे कहा कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस है इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है in order to see and in order to determine the level of output where the firm breaks even. इसी को जो है एक और मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. Assume that this firm which we are discussing just now, it wants to earn profit level, a specific profit which is let's say $100. तो इसके लिए भी हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं ओनली बाय स्लाइटली चेंजिंग इट. यहाँ पे न्यूमरेटर में हम ऐड कर देंगे पाई टी, वेयर पाई इज़ द प्रॉफिट एंड टी इज़ द टारगेट प्रॉफिट. टी स्टैंड्स फॉर टारगेट. द टारगेट प्रॉफिट इज़ $100. सो इन ऑर्डर टू अचीव द लेवल ऑफ आउटपुट अगेंस्ट दिस टारगेट प्रॉफिट, यानी कि जो टारगेट आउटपुट है वो फर्म की क्या होगी, इसके लिए भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें हम स्लाइटली सिर्फ एक चेंज करेंगे कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है वहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, इसमें हम ऐड करेंगे पाई टी, दैट इज़ द टारगेट प्रॉफिट. सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट नाउ in order to find the target output of the firm, we are going to use the formula which is QT is equal to QT, where T stands for target, that is the target output will be equal to total fixed cost plus pi T divided by P minus ABC. Now we know that the total fixed cost is equal to 200 plus 100 because our target profit is 100, and this is to be divided by P minus ABC, and we know that the value of P is $10 and ABC is equal to $5. Simplifying this, we get the target output level which is equal to
60। और इसका ये मतलब है कि जब आउटपुट लेवल जो है वो 60 होगा तो उस लेवल पर फर्म जो है वो $100 प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकती है। तो इसमें हम जो है इसको हम चेक भी कर सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने टोटल रेवेन्यू फंक्शन में Q इक्वल टू 60 जो है वो सब्स्टिट्यूट किया है। दैट इज टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P टाइम्स Q एंड वी नो दैट P इज इक्वल टू 10, Q is equal to 60 now, so that total revenue at this level of output will be equal to $600. Whereas total cost is equal to TFC plus ABC times Q, substituting the values for TFC, ABC and Q, we get here 200 plus 5 multiplied by 60, क्योंकि जो टारगेट आउटपुट हमारी है, टारगेट आउटपुट जो हमारी थी, जो हमने अभी मालूम की है, दैट इज़ इक्वल टू 60 यूनिट्स। तो इसमें जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे टोटल कॉस्ट में तो हम देख सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू $500, सो दैट वी कैन चेक हियर दैट इंडीड द टारगेट प्रॉफिट इज़ इक्वल टू $100, क्योंकि वो तो हमें पहले से मालूम था, लेकिन ये सिर्फ हमने चेक किया है और हम देख सकते हैं दैट टारगेट प्रॉफिट दैट इज़ pi t इज़ इक्वल टू total revenue which is equal to $600 minus total cost which is equal to $500, so that 600 minus 500 is equal to $100. तो इस तरह से फर्म जो है अगर उसका एक टारगेट प्रॉफिट का टारगेट है कि इतना प्रॉफिट जो है वो अर्न करना है, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए वो अपनी टारगेट आउटपुट जो है उसको मालूम कर सकती है। इसमें सिर्फ हमने फार्मूला में जो चेंज किया है वो आप देख सकते हैं। प्रीवियसली द फार्मूला for the break-even model was TFC divided by P minus ABC, and for the target profit, target output, we have used the formula which is TFC plus pi t, where pi t is the target profit divided by P minus ABC. A closely related concept to the break-even model is the operating leverage. Operating leverage is a ratio of fixed cost and variable cost. As you can see on screen, that operating leverage is equal to TFC divided by TVC. TFC is total fixed cost and the denominator is TVC, that is total variable cost. So it is a ratio of TFC and TVC, that is the ratio of fixed cost and variable cost. The higher this ratio is, the more the firm is considered to be highly leveraged. यानी कि जब ये वैल्यू हाई होगी, ये रेशो जो है इसकी वैल्यू जो है ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, तो उसमें हम ये कहेंगे दैट दिस फर्म इज़ हाईली लेवरेज्ड। और इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट जो है, द फिक्स्ड कॉस्ट आर रिलेटिवली ग्रेटर दैन वेरिएबल कॉस्ट। एज यू कैन सी द फिक्स्ड कॉस्ट अपीयर्स इन द न्यूमरेटर, वेयर एज द वेरिएबल कॉस्ट अपीयर्स इन द डिनोमिनेटर। So this means that in that case we'll be saying that the firm is highly leveraged. और इसी को जो इसकी जो डिग्री है इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक जो मेथड है दैट इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ DOL, विच इज़ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो इसके लिए ये फार्मूला अभी हम आपको डिराइव करके बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं और जो ये कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्चुअली दिस इज़ द profit elasticity of with respect to output, profit elasticity of output, और इसके लिए the formula is the percentage change in profit divided by the percentage change in output. जैसे कि आप स्क्रीन पर इस फॉर्मूला को देख सकते हैं that this is equal to the DOL is the percentage change in profit divided by percentage change in output. So we can see here the formula for the degree of leverage, which is DOL is equal to curly delta pi by delta Q into Q by pi. So since pi is equal to Q times P minus ABC minus TFC, we can easily substitute the value of pi, because we know that pi is total revenue minus total cost. और अभी हमने equate किया था total revenue को total cost के, जो कि हमने पिछली slide में अभी आपको बताया था, और उसके as a result of solving that is total revenue equating total revenue and total cost, we have solved and we have found the formula for the break even model. और इसमें जो है यही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई जो है उसकी वैल्यू हम वहीं से डिराइव करके सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड हियर यू कैन सी दैट व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज ऑफ पाई एंड क्यू,
Here we get the result is Q times P minus ABC divided by Q multiplied by P minus ABC minus TFC. और यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, तो उसमें जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. दैट इज़ द डिग्री ऑफ लेवरेज इज़ इक्वल टू द न्यूमरेटर इज़ Q times P minus ABC and the denominator is Q times P minus ABC minus TFC. इस स्लाइड में हम देख सकते हैं हमने उसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. दैट इज़ वी आर यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ द सेम फर्म वेयर वी हैव सीन दैट द टोटल रेवेन्यू and the total costs are given. Price was equal to $10 and ABC, that is the average variable cost, was equal to $5. Now assuming that there is a change, और ये चेंज जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है, टोटल रेवेन्यू रिमेन्स द सेम बट टोटल कॉस्ट इज चेंज. दैट इज हियर now the total fixed cost is equal to $300 instead of $200 and the average variable cost is now equal to $3.33, so that you can see that the slope of the total cost function is now it has changed. और इसको हमने जो है जो नया हमारे पास टोटल कॉस्ट कर्व है वी हैव डिनोटेड इट बाय TC प्राइम, और पहला जो है दैट इज TC and the new total cost is now TC prime. You can see here that this new total cost curve intersects the total revenue curve at Q equal to 45. So यहाँ पे जो हमारा पहले जो हमारा break even point था that was Q equal to 40. Now this point is higher than the previous one because here we can see that the ratio जो अभी हमने degree of leverage की बात की है firm की, यहाँ पे हम देखेंगे कि जब ये ratio अभी हमने कहा कि when this ratio is higher the degree of leverage of the firm is higher. So इसमें जो है हम values हमारे पास हैं अब, तो उन values को जब हम substitute करेंगे तो हम इन दोनों का comparison जो है वो कर सकते हैं. Here we can see that this tool, that is the break-even analysis or the cost-volume analysis, cost-volume profit analysis, this is a flexible tool. और इसमें जब changes आती हैं तो वो हम उन changes को यहाँ पे incorporate कर तो ये degree of leverage जो है उसको मालूम कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है उसमें चेंज आई है. द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हैज़ बीन चेंज, द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ आल्सो चेंज एंड नाउ वी कैन सी द रिज़ल्ट. इस पे ज्योमेट्रिकली भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसी तरह से एल्जेब्रिकली भी हम इसका सोल्यूशन जो है वो मालूम कर सकते हैं. ज्योमेट्रिकली जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है जैसे मैंने पहले कहा कि अब जो है ब्रेक इवन पॉइंट वो पहले की निस्बत ज़्यादा है. दैट इज़ द at the level of Q equal to 45 whereas previously it was Q equal to 40. और यहाँ पे अगर चेंज जो है फ्रॉम Q इक्वल टू लेट्स से 60 से 70 हम करते हैं तो उसका जो चेंज है वो भी हम आसानी से यहाँ पे ग्राफिकली भी देख सकते हैं. As a result of this change, we can see that when output is increased from 60 units to 70 units, तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके नतीजे में जो change आएगा, that is the difference between total revenue and total cost, and obviously that will give you the profit levels. तो वो भी जो है हम आसानी से ग्राफिकली भी यहाँ पर देख सकते हैं बिकॉज द प्रॉफिट इज सिंपली द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द कॉस्ट कर्व एंड द रेवेन्यू कर्व एट द लोअर लेवल्स, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट कर्व जो है दैट इज लाइंग अबव द रेवेन्यू कर्व. और एट द हायर लेवल ऑफ आउटपुट्स दैट इज एट Q इज इक्वल टू 60 और Q इक्वल टू 70 वी कैन सी दैट द रेवेन्यू कर्व लाइज अबव द कॉस्ट कर्व, और इसलिए वहाँ पे जो है प्रॉफिट जो है वो हम देख सकते हैं दैट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन the revenue and the cost curve, whereas losses are the vertical distance between cost curve and the revenue curve. तो इसको जब आप स्क्रीन पे देखते हैं तो इसको हम ग्राफिकली भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इसको हमने जो है अलजेब्रिकली भी सॉल्व किया है. For an increase in output from 60 to 70 units, the DOL, that is the degree of leverage with total cost, that is the previous total cost. We can see here this is by substituting the values. We get here 60 multiplied by 10 minus 5 divided by 60 multiplied by 10 minus 5 minus 200. So simplifying this, we get 300 divided by 100, which is equal to 3.
With total cost now TC prime, the firm becomes more highly leveraged. The DOL prime is equal to 60 minus 3.33 divided by 60 multiplied by 10 minus 3.33 minus 300, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कहा है कि अब फिक्स्ड कॉस्ट जो है दैट इज इक्वल टू 300 एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नाउ इज इक्वल टू 3.33. So that simplifying this we get 400 divided by 100 which is equal to 4. तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जो फर्म है जब टोटल कॉस्ट में चेंज आता है, जब टोटल कॉस्ट में चेंज आया है वहाँ पे जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो भी हमारा पहले की निस्बत हायर लेवल ऑफ आउटपुट पे है. और फर्म जो है जैसे मैंने पहले कहा कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इट्स द लेवरेज इज डिग्री ऑफ लेवरेज मेजर्स द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो रेशियो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. और हमने कहा था कि जब ये रेशियो हायर होगी द फर्म इज़ कंसिडर्ड टू बी हाईली लेवरेज्ड या ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव जो है वो हो जाती है. तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहले का टोटल कॉस्ट फंक्शन था वहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट 200 थी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो $5 थी. और इसको सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास DOL द डिग्री ऑफ लेवरेज जो है वो आई है 3. और जबकि नई जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं दैट इज़ व्हेन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज़ इंक्रीज दैट इज़ नाउ इट इज़ इक्वल टू $300 एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ डिक्रीज विच इज़ इक्वल टू $3.33. एज अ रिज़ल्ट वी गेट DOL प्राइम विच इज़ इक्वल टू 4. तो जो इसको ये शो करता है कि अब फर्म जो है इस कॉस्ट कर्व के साथ ज़्यादा जो है पहले की निस्बत इट इज़ हाईली लेवरेज्ड. Next, we are going to consider other important concept which is called learning curve. This is also called experience curve or there are other names like progress curve और इसी तरह से इसका जो है एक इसको improvement curve भी कहा जाता है, but most popularly it is known as learning curve. Learning curve जैसे कि आप इसकी definition screen पे देख सकते हैं, learning curve shows the rate of improvement in performing a task as a function of time or the rate of change in average cost in hours or dollars as a function of cumulative output. इस पे जो है कॉमन सेंस की बात है, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि उसकी डिफरेंट रीजंस हैं. देयर आर टेक्निकल रीजंस, देयर आर फाइनेंशियल रीजंस एंड इन टेक्निकल रीजंस वी हैव सीन दैट वन ऑफ द रीजन वाज हाईली स्पेशलाइजेशन, दैट इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर विच रिजल्ट्स इनटू स्पेशलाइजेशन. और उसमें हमने ये आपको बताया था कि जब एक ही काम को बार बार वो रिपीट करते हैं देयर इज़ अ रेपिटेटिव टास्क एंड दे हैव टू परफॉर्म दैट टास्क रिपीटेडली. तो उससे क्या होता है कि उनकी प्रोफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी जो है वर्कर्स की वो इंक्रीज हो जाती है और इससे टाइम सेव जो है वो इसमें टाइम काफ़ी सेव हो जाता है, लेबर टाइम, और इसके रिज़ल्ट क्या होता है कि कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन कर जाती है. लेकिन वहाँ पे हमने ये भी कहा था कि जब हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात कर रहे थे वी हैव सेड दैट वी हैव assumed that the input prices are fixed, that is the interest rate, wage rates and the plant configuration, and similarly we have also said that all these are assumed fixed, and we have also said that the operating environment is also fixed. अगर कोई चेंज ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में आएगी तो इसका नतीजा क्या होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द एंटायर कॉस्ट कर्व विल आइदर शिफ्ट डाउनवर्ड्स और शिफ्ट अपवर्ड्स. शिफ्ट डाउनवर्ड्स वो उस वक्त होगा जब कोई प्रोडक्ट इनोवेशन होगी, जैसे प्रोडक्ट इन्वेंशंस हो जाती हैं या प्रोसेस में कोई इनोवेशन हो जाती है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द एंटायर कॉस्ट कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स. whereas if there is a change in prices, input prices जो हैं अगर वो बढ़ जाती हैं या इन्फ्लेशन है उसकी वजह से जो आपका एंटायर कॉस्ट कर्व है, एवरेज कॉस्ट कर्व, दिस विल शिफ्ट्स अपवर्ड्स. तो ये शिफ्ट्स जो हैं इनको हमने, लेकिन वी डोंट हैव टू कंफ्यूज दीज शिफ्ट्स इन द average long run average cost curve. These shifts, downward shifts and upward shifts, these shifts are we don't have to confuse it with the movement along the same average cost curve which is caused by the changes in output. जो कि आउटपुट में चेंज जब होगा तो एवरेज कॉस्ट में जो चेंज आता है वो उसके साथ आपको मिक्सअप नहीं करना चाहिए. All these factors, that is the operating environment, they are assumed fixed.
क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास डाउनवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट जो है कॉस्ट कर्व में नहीं आती है, और हम जो वहाँ पे स्केल इकोनॉमीज़ के साथ देख रहे थे वो हम एक कॉस्ट कर्व, दैट इज़ द लॉन्ग रन कर्व कॉस्ट कर्व, और द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, दोनों में हम जो आउटपुट के साथ था यहाँ पे हम देख रहे थे जो चेंजेस, जब आउटपुट में चेंज आएगी तो उसके नतीजे में क्या चेंज जो है वो कॉस्ट कर्व में आएगी, वो हम देख रहे थे। इसलिए कि यहाँ पे जो हम लर्निंग कर्व की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म ज़्यादा आती है वो यही है कि हम आइसोलेट नहीं कर सकते जो लर्निंग इफ़ेक्ट है उसको, और जो इकोनॉमीज़ की वजह से जो इफ़ेक्ट आता है उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। लेकिन अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे हम इनको मिक्सअप नहीं करें, बिकॉज दीज टू आर टू डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग कर्व एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल इकोनॉमीज़, दीज आर टू डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट एंड वी शुड नॉट मिक्स देम। लेकिन अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट है, दिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट. After that, this was first, I think, quantified. It is assumed that it was first quantified at in 1936 at the Wright-Patterson Air Force Base in the United States, and there it was determined that whenever aircraft output is doubled, the labor time is saved by 10 to 15%. सो इसमें जो उन्होंने फर्स्ट टाइम क्वांटिफाई किया वो ये था कि जब भी वॉल्यूम जो है आउटपुट की उसको डबल किया जाता है तो इससे लेबर टाइम जो है दैट इज़, और जो लेबर जो टाइम है वो सेव होता है 10 to 15%. इसके बाद और जो स्टडीज़ आई, एम्पिरिकल स्टडीज़, उनमें रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट थे, लेकिन और उसमें जो रेंज थी दैट वाज डिफरेंट, दैट इज़ इट वाज रेंज्ड बिटवीन 2% to 30%. बट इस पे काफ़ी काम जो है वो हुआ, और इसी तरह से एक और अमेरिकन जो कंसल्टिंग ग्रुप था विच इज़ नोन एज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, उसने भी इस पर काफ़ी काम किया during 1960s and 70s, and they found that learning curve effect, it saves cost around 20% to 30%, या दूसरे जो उनके रिजल्ट्स थे उसमें 10% to 25% ये उन्होंने उनकी फाइंडिंग्स थी। तो इस तरह से जो लर्निंग इफ़ेक्ट है, लर्निंग इफ़ेक्ट बेसिकली जैसे कि हमने अभी कहा कि सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि इसके डिफरेंट नाम हैं, लर्निंग कर्व भी नाम है, एक्सपीरियंस कर्व भी है, एंड इन मेनी टेक्स्ट यू विल फाइंड दैट दीज टू टर्म्स, दैट इज़ लर्निंग इफ़ेक्ट एंड द learning curve or learning effect or the experience curve, these are used interchangeably. But actually the experience curve is a much broader कॉन्सेप्ट. उसमें सिर्फ लेबर जो है टाइम उसको या लेबर कॉस्ट जो है उसको नहीं देखा जाता, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. फॉर इंस्टेंस उसमें जो है प्रोडक्ट इन्वेंशंस, प्रोडक्ट इनोवेशंस हैं, प्रोसेस इनोवेशंस हैं, और इसी तरह से जो प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है वो रीडिज़ाइन हो जाता है. सो इंजीनियरिंग मेथड्स भी उसमें आ जाते हैं, तो उसमें काफ़ी टेक्निकल और जो रीजंस हैं वो भी शामिल हो जाती हैं. जबकि लर्निंग कर्व बेसिकली दैट इज़ रिलेटेड टू लेबर आवर्स, कि एक काम को जब आप बार बार रिपीट करते हैं तो उसमें एक्सपीरियंस के थ्रू आपका जो पहले से आपका जो लेवल है वो बेहतर हो जाता है. फॉर इंस्टेंस इसके लिए एग्जांपल जो क्लासिक दी जाती है कि अगर हम एयरक्राफ्ट जो है वो 100 एयरक्राफ्ट लोग जो है वो असेंबल कर रहे हैं वर्कर्स, तो इसके लिए मे बी दे नीड 1000 आवर्स. But when they are assembling the 200th aircraft, due to the experience, now they take only 700 labor hours. तो इसमें ये जो difference है 1000 labor hours और 700 labor hours, that is due to the experience which is gained from the production of 100 aircrafts, and then और उसके बाद जो ये हम लेवल ऑफ आउटपुट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो करंट आउटपुट नहीं है. वी आर कंसिडरिंग cumulative वॉल्यूम ऑफ आउटपुट हियर. जैसे कि हम कैलकुलेट करते हैं GPA, लेट्स से GPA फॉर अ सेमेस्टर. अब BBA जो है उसमें 8 सेमेस्टर्स हैं. एक सेमेस्टर का जो हम GPA कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ GPA फॉर दैट सेमेस्टर, बट एट द एंड ऑफ द 8th semester we calculate CGPA, which stands for cumulative GPA. So here we are referring to cumulative volume of output and not simply
the level of output which is the current level of output. हम cumulative level of output की जो है बात कर रहे हैं. इसीलिए इसमें यहाँ पे जब हम इसको आपको फिगर में इसको ड्रॉ करके बताएंगे तो आप देख सकते हैं दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल इकोनॉमीज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग कर्व. लर्निंग कर्व जो है आप देख सकते हैं, लर्निंग कर्व कॉज एन इनवर्ड शिफ्ट इन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व due to better production knowledge, and learning curve, it is often mistaken for scale economies. This is what we are going to explain here with the help of a diagram. And also you can see that if learning results in 20% to 30% cost saving, it becomes a key part of competitive strategy. So हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लर्निंग कर्व जो है उसको हम देखेंगे कि काफ़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसको यूज़ करती हैं और इसको डॉक्यूमेंट करती हैं. Now on screen you can see the learning curves which are drawn here. The long run average cost curve is drawn for period T and for period T plus 1. There is a downward shift for the entire levels of output here. जो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है इन पीरियड टी, और जो पीरियड टी प्लस 1 है वो डाउनवर्ड शिफ्ट के साथ, जबकि जो कि हमने अभी डाउनवर्ड शिफ्ट जो है वो डिस्कस की थी. और उसमें हमने कहा था कि जो लर्निंग इफ़ेक्ट है उसमें हमने ये कहा था कि हम इसमें काफ़ी फैक्टर्स जो हैं उसको हम जब हम कॉस्ट इकोनॉमीज़ की स्केल इकोनॉमीज़ की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने कहा था कि काफ़ी फैक्टर्स जो थे वो हम फिक्स्ड रखते हैं, जैसे कि इनपुट प्राइसेस हैं और इसके अलावा स्केल आउटपुट, और इसके अलावा वहाँ पे हमने जो है बात की थी जो एनवायरनमेंट है, कंप्लीट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, दैट इज़ अस्यूम फिक्स्ड. तो उसके नतीजे में जब हम फिक्स्ड होगा तो हम फिर स्केल इकोनॉमीज़ की अगर बात करेंगे तो दैट इज़ कॉज्ड बाय द लेवल ऑफ आउटपुट. जब लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ करेगा तो उसके नतीजे में कॉस्ट पे क्या असर होगा वो वहाँ पे हम देखते हैं. जबकि यहाँ पे हम जो डाउनवर्ड शिफ्ट यहाँ पे जो आया है दैट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ लर्निंग इफेक्ट, दैट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द लर्निंग इफेक्ट. ओके, हियर वी कैन सी दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब पीरियड टी में आउटपुट जो थी क्यू टी थी और यहाँ पे कॉस्ट उसके कॉरस्पॉन्डिंग दैट इज़ इक्वल टू सी. एंड इन पीरियड टी प्लस 1 जब हम जो प्रोडक्शन है वो लेवल वही है, दैट इज़ क्यू टी. नाउ द कॉस्ट इज़ बी, सो दिस मीन्स दैट द अमाउंट बी सी इज़ द कॉस्ट सेविंग विच इज़ रिजल्टेड ड्यू टू दिस लर्निंग इफेक्ट. अब लर्निंग इफेक्ट की वजह से हमारा जो एंटायर एवरेज कॉस्ट कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट उसमें हुई है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लेवल ऑफ आउटपुट था पीरियड टी में, क्यू टी पहले था, तो वहाँ पे कॉस्ट जो थी वो सी के बराबर थी, जबकि वही प्रोडक्शन लेवल ऑफ प्रोडक्शन अगर हम रखते हैं तो पीरियड टी प्लस 1 में इस कॉस्ट कर्व के साथ अब जो कॉस्ट है दैट इज़ इक्वल टू बी. दिस मीन्स दैट बी सी इज़ द कॉस्ट सेविंग amount due to which is a result of the learning effect. If now firm decides to expand its output from QT to QT plus 1, then you can see that the cost is now A. So that there is a difference. Cost यहाँ पे जो है वो A आ जाती है. There is, so this means that now there is a difference between AC and AB. आप देख सकते हैं कि जो अब कॉस्ट डिफरेंट, टोटल कॉस्ट डिफरेंट जो है यहाँ पे दैट इज़ इक्वल टू AC. And from this total difference between the cost, that is point A to point C, BC is the result of learning effect, whereas AB is the result of the scale economies. So यहाँ पे आप क्लियरली इसमें डिफरेंस जो है इन दो कॉन्सेप्ट्स में देख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था दैट स्केल इकोनॉमीज जो है दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ whenever there is a change in output. Here we have changed the output from QT to QT plus 1, और इसके नतीजे में जो कॉस्ट में डिफरेंस आया है, the total cost saving is equal to AC, and out of this BC is the result of learning effect, और AB जो है that is the result of economies of scale. In order to measure the learning rate, we can use a formula which is given on the screen. You can see the learning rate formula is given by learning rate is equal to 1 minus AC2 by AC1 multiplied by 100. इसमें AC2 जो है assuming that the firm
Assuming that the firm's unit cost, average cost, is equal to $100 in the current year, in the previous year, and its cost has fallen due to the learning effect, and that is denoted by AC1. और assume करें कि अब जो cost है वो $90 है, and और ये इसकी वजह जो है वो learning effect की वजह से cost में ये जो कमी है वो आई है, so that we can easily substitute the value of AC2 and AC1. That is the previous price, the previous cost was equal to $100 unit cost जो थी, और अब जो नई unit cost है that is equal to $90. So substituting this into the formula, we get the learning rate which is equal to 1 minus 90 by 100 multiplied by 100. This is equal to 10%. This means that when the volume of cumulative output is doubled, the firm can expect a 10% decline in the average cost curve, in the average cost, and which this is a result of the learning effect. This is reflected, ये जो 10% decline आएगी average cost में, this reflects the effect of learning. नेक्स्ट जो स्क्रीन में आप स्लाइड देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक और लर्निंग कर्व जो है वो ड्रॉ किया है, एंड हियर यू कैन सी दैट व्हेन द फर्म इज प्रोड्यूसिंग 100th unit, I'm not saying 100 unit, 100th unit, that is in that case the cost is $250 approximately. एंड यहाँ पे क्योंकि जो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कुमुलेटिव आउटपुट जो है वो मेजर की है, और वर्टिकल एक्सिस पे जो है एवरेज कॉस्ट है दैट इज़ बीइंग मेजर्ड. Here you can see that this learning curve जो है इसमें 100th unit पे जो cost है that is approximately $250, and for 200th unit the cost is $200 approximately, and for जब इसको इस volume को हम दोबारा से double करते हैं that is from 200 to 400, the 400th unit of the output is for that the cost is approximately $165. Here you can see that the learning curve, it is declining, but it is declining by a decreasing rate, and that is why its slope, ये जो है learning curve, it is convex to the origin, और slope तो इसकी negative है. इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस learning curve को जब हम देखते हैं तो ये इसमें basically जो learning curve effect है उसके बारे में ये कहा जाता है that the firm can give a predictable rate of learning effect, and this predictable rate can be computed with the help of this equation which is given on the screen, and you can see here that this equation is average cost of unit Q is equal to C is equal to AQ to the power B, where C is the average unit cost of the qth unit, and A is the average cost of the first unit, and B is negative. B is negative because the average cost is declining. Average cost जो है वो decline कर रही है learning effect की वजह से, और इस जो equation है इसको हम log linear form में लिख सकते हैं, which is equal to log C is equal to log A plus B times log of Q. In this double log form, B is the slope of the learning curve. और इसमें जो A है और B, that is the parameters of this equation, they can be estimated by using regression analysis. और हम assume करते हैं कि हमारे पास जो है historical data है और जिसमें कि volume of output जो है वो है, और इसके साथ जो cost है average cost, वो हमारे पास कुछ जो observations हैं. अगर हम ये assume करें कि हमने regression analysis जो है regression को run किया है और उसका रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर कि अगर हमारे पास उसका रिज़ल्ट जो है वो आता है log C is equal to 3 minus 0.3 log Q, where log A is equal to 3 and B is equal to, ये जो हमने estimate किए हैं तो this is equal, A is equal to 3 and B is estimated as minus 0.3. Now, in order to see the what will be the cost of the 100th unit, then we substitute here Q equal to 100, so that we have here log C equal to 3 minus 0.3 log 100. Log C is इसको जब हम simplify करेंगे, since the log of 100 is equal to 2, so that we have here 3 minus 0.3 multiplied by 2, and we get here log C equal to 2.4. The antilog of 2.4 is 251.2. Therefore,
the cost of 100th unit is approximately $251. This is what we have already found graphically. अभी हमने आपसे कहा था कि ये जो learning curve हमने draw किया है, इसका जो 100th unit है, उसकी जो cost है that is approximately equal to $250, जो कि हमारे पास यहाँ पे $251.2 approximately वही cost है. Next we will consider the average cost of the 200th unit. तो हम इस सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में log c इज इक्वल टू 3 माइनस 0.3 log 200 एंड log ऑफ 200 इज इक्वल टू 2.3. तो log ऑफ 200 जो है वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारी जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी log c इक्वल टू 2.3. सो दैट एंटी लॉग ऑफ 2.3 इज 204 और इस तरह से हमारे पास जो इस 200th यूनिट की कॉस्ट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 204. इसी तरह से अगर हम इसमें 400 जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली $165 आएगा. तो इस तरह से हम जो आपको बात समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि जैसे ही वॉल्यूम जो है वो कुमुलेटिव आउटपुट की वॉल्यूम को डबल किया जाता है तो उसके रिज़ल्ट में एवरेज कॉस्ट जो है दैट वो डिक्लाइन हो जाती है और उसकी रीज़न जो है वो हम कह रहे हैं लर्निंग इफ़ेक्ट है. जो एक्सपीरियंस के साथ प्रोडक्शन में जो एक्सपीरियंस के साथ उनको जो वो लर्न करते हैं वर्कर्स और इससे जो लेबर टाइम सेव होता है उसकी वजह से ये एवरेज कॉस्ट जो है उसमें कमी आती है. जैसे कि पहले भी मैंने आपसे कहा है कि लर्निंग कर्व जो है उसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं इसमें यूटिलाइज़ किया जाता है. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ विद स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड कंपटीशन बेस्ड ऑन प्राइस दैन प्रोडक्ट वेराइटी और सर्विसेज. इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ जो कि स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स बना रही हैं और वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स नहीं हैं और इनका जो कंपटीशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन प्राइस रादर देन ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. उसमें लर्निंग कर्व जो है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. इसी तरह से नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि लर्निंग कर्व हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड इन मेनी अदर इंडस्ट्रीज़ रेंजिंग फ्रॉम एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम रिफाइंड जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये यूज़ होता है. इसी तरह से शिप बिल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. और इसके अलावा द लर्निंग कर्व इज़ ऑल्सो यूज्ड टू फोरकास्ट personnel, the number of personnel, machinery and raw materials. It is also used in pricing policy. बाद में जब हम pricing policy को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि learning curve जो है pricing policy में भी यूज़ होता है. जो रियल वर्ल्ड में इसका जो इस्तेमाल है उसको अमेरिकन फर्म टेक्सस इंस्ट्रूमेंट्स ने और इसको काफ़ी एग्रेसिवली यूज़ किया और इसी तरह से जापानीज डिफरेंट फर्म्स जो हैं वहाँ पे भी इसको बेस करते हुए दैट इज़ दे हैव यूज्ड एग्रेसिव प्राइसिंग पॉलिसी बेस्ड ऑन द लर्निंग कर्व. वहाँ पे वो ये करते थे कि स्पेशली कंप्यूटर जो चिप्स हैं और कंप्यूटर की इंडस्ट्री जो है उसमें प्राइसेस जो थी उनको कट करते थे एग्रेसिवली और इसके रिज़ल्ट में क्या होता था कि जब प्राइस बहुत कम होती थी तो उसमें सेल्स उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती थी और जब सेल्स ज़्यादा होंगी तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वर्कर्स जो हैं उनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता था और वो उसको बहुत कम टाइम में उसी काम को कर सकते थे. तो लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा था और इसके नतीजे में जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियली द कॉस्ट वाज एवरेज कॉस्ट वाज डिक्लाइंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ लर्निंग इफेक्ट. तो इस तरह से ये जापानीज़ फर्म्स और जो अमेरिकन टेक्सस इंस्ट्रूमेंट फर्म है उन्होंने इस को प्राइसिंग पॉलिसी को एग्रेसिवली यूज़ किया और इससे उनको बहुत ज़्यादा वो सक्सेसफुल रहे और इसका जो बेस उन्होंने इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो थी उसको इसमें बेस जो बनाई थी दैट वाज द लर्निंग इफ़ेक्ट और द लर्निंग जो इफ़ेक्ट है या लर्निंग कर्व जो था उसमें इसको बेसिकली उन्होंने यूज़ किया. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है लर्निंग कर्व का और या एक्सपीरियंस कर्व जो है इसको एक्सटेंसिवली डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. With that we come to an end of this session. We'll continue with this topic next time. Thank you. Khuda Hafiz.